गुड इवनिंग। अच्छा लग रहा है? नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ, नहीं मेरे को तो ऐसा दिखा रही है ना। चलिए, कम टू द टॉपिक। हमने कल गवर्नमेंट बजट स्टार्ट किया था और उसमें मीनिंग पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव पढ़े थे और स्ट्रक्चर का आधा पार्ट पढ़ा था। सही है? यस। तो मीनिंग फटाफट से रिकॉल करो। मीनिंग क्या है? इट इज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स। It is statement showing estimated receipts and estimated expenditure. हो गया? अब मैं बोल देता हूँ। It is a statement of estimated receipts and estimated expenditure for upcoming accounting year or financial year for the government is known as government budget. There are many objectives of the government budget. Why government make the budget? So first objective is the reallocation of the resources. It means private sector, which main motive is to earn profit. So government charge taxes on the earnings of the private sector, and these receipts are used for the welfare of the public. So this is called reallocation of the resources. Second objective is managing public sector enterprises. In the government, it decide that in which industries government should invest and in which industries government should disinvest. So this is the function of the budget, or we can say the objective of the budget, which includes the investment and disinvestment decision of the government regarding the public sector enterprises. Next one, income equalities. In our economy there is an income inequalities, means poor is more poor and rich are more rich. So this is the widening gap between the poor and rich. So government try to remove this gap by the budget. So government charge taxes on the income of rich class, and this income is used for the welfare of the poor people. So by this budget government maintain equality in the income. Next objective, even development, or it is also called regional balanced development. It means government should try to develop those areas which are basically backward. So government invest in these areas to develop or to generate employment. So this is called the balanced regional development. Next one, economic stability. In our economy there is two fluctuations. First one is inflation and second one is deflation. Inflation showing the money supply is more and recession is showing money supply is less. So in the situation of inflation, government should try to contraction of the money supply. So for the control of inflation, what government should do? Contraction of the money supply. So what measures government should use? There is a fiscal policies. There are two types of budget: surplus budget and deficit budget. In the case of inflation, government prepare surplus budget, which means receipts are greater than expenditures, which showing the government taking more and giving less. It is a situation of contraction of credit. And in the situation of recession, what government should do? Government prepare deficit budget. What is the meaning of deficit budget? It is a situation where government expenditures exceed to the government receipts, and according to this budget there is an expansion of the credit in the economy. When credit expanded, then more employment opportunities generated in the economy, and which leads to recession under control. So these two situations are controlled by the government by the making fiscal policies. Same to these situations are also controlled by the RBI, and when RBI control these situations, then the policy is called monetary policy. Okay. Next objective is employment generation. By the budget, government provide direct or indirect employment to the people. Directly recruitment like teachers vacancy, doctors vacancy, patwar vacancy,
many kind of vacancies are there in the government departments. So this is called direct recruitment. And with the development, government also generate indirect employments, like when government constructed roads, dams, canals and other infrastructure facilities, then the linked sectors which also developed, like if road constructed, then there are many unskilled laborers are working in the road construction work, so they get employment. So it is indirect nature of unemployment, so indirect nature of employment. Next one, proper utilization of the resources. Proper utilization means the resources are limited and the needs of an economy are unlimited. So government should try to proper utilization of the resources by making proper planning of the resources, how we earn and where we invest. Complete. Next topic था structure of the government budget. It is divided in two parts: estimated receipts and estimated expenditures. Estimated receipts again classify in two categories. One is revenue receipts and capital receipts. What is the revenue receipts? Neither nor conjunction use करना है. Those receipts which neither decrease, those receipts which neither reduce or decrease the value of assets and nor increase value of liabilities for the government are called revenue receipts. And capital receipts are those receipts which either decrease the value of assets or increase the value of liabilities are known as capital receipts. Again, revenue receipts further classified in two categories. First one is tax and second is non-tax. Tax is a compulsory payment which is made by the individual person or any firm to the government. Is called tax. Again, tax is further classified in two categories. One is direct tax and other is indirect tax. What is the direct tax? It is a type of tax which imposed on the income or wealth of the people. Its burden can't be shifted on another person. And indirect tax is that tax which imposed on production or supply of goods and services. Its burden can be shifted on another person's. Examples: direct tax, income tax, corporation tax, wealth tax. These are the examples of direct tax. Goods and service tax, excise duty, sales tax, custom duties. These all are the examples of indirect taxes. Now come to the other topic, which is non-tax receipts. Non-tax receipts means those receipts which are other than tax receipts. It includes fees, fines and penalties, permit, estate, special assessments, sale of spectrums, charity and donations, as well as income from the public sector enterprises. Because government run various type of public sector enterprises like BSNL, BHEL, SAIL. So these enterprises also generate income to the government, and this income goes to the non-tax revenue receipts. Now come to the next topic, capital receipts. Capital receipts means those receipts which either decrease value of assets or increase value of liabilities to the government. It includes disinvestment, acquiring loan and borrowings from public, from RBI, from rest of the world, from foreign government, whatever. And it also includes recovery of the loans. It also includes recovery of the loan. What is the meaning of recovery of loans? The loan given by If central government give loan to the state government, suppose Indian government given loan to the Rajasthan government 500 crore. So for the state government it is liability and for the central government it is assets. When central government recover the loan from the Rajasthan government, then what happen? Assets reduce, because गवर्नमेंट का क्या था, वो एसेट्स थी ना, वापस रिकवर कर ली तो वो एसेट्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स मिलेगी. तो रिकवरी ऑफ लोन क्या है?
कैपिटल रिसिप्ट। हमने 2 ही पॉइंट लिखे होंगे, एक और पॉइंट आप उसमें ऐड कर लीजिए, रिकवरी ऑफ लोन्स। अब अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। अब बस चलो, अगला जो टॉपिक है बजट स्ट्रक्चर का, रिसिप्ट खत्म। अब हम एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर पे आते हैं। एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और सेकेंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स कंप्लीट हो गया पूरा पार्ट। अब हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले इसका टाइप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो फर्स्ट डिफाइन अपन पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका अपोजिट है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट था ना, इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब एरो चेंज कर दो और क्रॉस लगानी है। एरो चेंज करने का मतलब असेट्स इंक्रीज हो या फिर लायबिलिटीज डिक्रीज हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें भी नाइदर नोर। क्या डिफाइन बनेगी इसकी? दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर इंक्रीज असेट्स नॉर डिक्रीज इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे कौन से खर्चे हैं जिससे गवर्नमेंट की ना तो असेट्स बढ़ती है ना लायबिलिटीज कम होती है? तो क्या एक्सपेंडिचर इसमें हो सकते हैं? सैलरी टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस या गवर्नमेंट स्टाफ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो उससे ना तो उससे गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ेगी ना ही उससे लायबिलिटीज कम होती है। वो काम कर रहे, काम के बदले पैसा मिल रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है सैलरी। बिजनेस आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो ना, सैलरी एंड वेजेस। क्या है ये? बैलेंस शीट में थोड़ी जाता है, नहीं जाता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, तो इसलिए तो P&L में आता है वो। गवर्नमेंट का ये भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट उनको सैलरी पे कर रही है, तो गवर्नमेंट के किस अकाउंट का पार्ट होगा? वो रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंस में उसको शो किया जाता है। ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अलावा? और होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। क्या होता है बताओ? ट्रांसफर पेमेंट किसको बोलते हैं ना? एक बार मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था तो एक बच्चे ने आंसर बहुत अच्छा लिखा इसका, ट्रांसफर पेमेंट का। हाँ, उसने लिखा था किसी एम्प्लॉय का जब ट्रांसफर हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आने जाने का जो भी खर्चा लगता है वो उसका ट्रांसफर पेमेंट होता है, और गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर का पैसा देती है। किसी ने दिया था मेरे को, बच्चे का नाम तो याद नहीं, लेकिन उसका आंसर जो अच्छा था वो याद है मुझे, स्कूल का। कोचिंग के बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे। ट्रांसफर पेमेंट मतलब नेशनल इनकम में भी आया था ये तो, फिर इतने भोले वाले क्यों बन रहे हो? हैं? ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार पढ़ रहे हो इसको। नेशनल इनकम में भी तो था फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, डिफरेंस भी थे उसमें। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, याद आएगा। यस, फ्री में जो मिलता है, जो फ्री में जो कुछ भी मिलता है। हाँ, ओल्ड एज पेंशन है ना, जो फ्री में मिलते हैं। पॉकेट अलाउंस भी इसके ही पार्ट है। चैरिटी डोनेशंस ये भी इसी का ही पार्ट है ना। जो ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट अगर किसी को फ्री में कुछ दे रही है, जैसे फ्री राशन सप्लाई कर रही है, तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट है गवर्नमेंट का, है ना। किसी को स्कॉलरशिप दे रही है, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज मिल रहे हैं, जैसे अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें फ्री दे रखी है, वो तो सही है। इसके अलावा जो बेरोजगार लोग हैं उनको, गर्ल्स को 4,500 रुपये महीने के और बॉयज़ को 3,500 रुपये महीने के अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। 60+ जितने भी जो ओल्ड एज पर्सनस हैं उनको पेंशन मिलती है 1,000 रुपये महीने की। तो ये सब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ये यूनिलेटरल पेमेंट्स कहलाते हैं। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, कुछ करो मत फिर भी पैसा मिलता है। फैक्टर पेमेंट बाइलेटरल होते हैं, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, वो बाइलेटरल है, 2 साइडेड है या डबल साइडेड है। लेकिन ये ट्रांसफर पेमेंट 1 साइड होते हैं, इसलिए इसको यूनिलेटरल पेमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ट्रांसफर पेमेंट भी किसका पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है।
इसके अलावा जो लोन पे इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट होता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट के खर्चे को आपने पीएनएल में भी पढ़ा होगा ना, हम इंटरेस्ट कहाँ दिखाते हैं, पीएनएल में दिखाते हैं, इसका मतलब रेवेन्यू खर्चा है। तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट का जो पैसा है, लोन ले रखा गवर्नमेंट ने और उस पर गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट दे रही है तो किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। कुछ चीजें समझ में आई क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे ना तो असेट्स बढ़ती है ना लायबिलिटीज कम होती है, तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो इसका अपोजिट, इस क्रॉस को हटा दें तो क्या बनेगा, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे या तो गवर्नमेंट के असेट्स बढ़े या फिर लायबिलिटीज कम हो जाए, यानी कि आइदर और। Those expenditure which either create assets for the government or reduce liability for the government are known as capital expenditure। ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे या तो गवर्नमेंट के असेट्स बढ़ जाए, जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई तो स्कूल बिल्डिंग इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब गवर्नमेंट की असेट्स है। गवर्नमेंट ने रोड बनवाया, किसकी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने पार्क बनवाया, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने डैम बनवाया, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो खर्चा हो रहा है ना, तो खर्चा हो तो रहा है लेकिन उससे असेट्स भी बढ़ रही है। ये तो सब असेट्स इंक्रीज होने के एग्जांपल्स हैं। लायबिलिटीज डिक्रीज होने के एग्जांपल्स, गवर्नमेंट ने आरबीआई से मान लो लोन लिया, लोन का रिपेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी कम होगी ना। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, वापस चुका दिया, तो रिपेमेंट ऑफ लोन भी क्या है, खर्चा ही है ना, लेकिन कैसा खर्चा है, कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में जाता है ये। हमारे लायबिलिटी साइड में अगर लोन है तो रिपेमेंट कर देंगे तो कम हो जाएगा, और इस तरफ असेट साइड अफेक्ट होगी बैलेंस शीट के अंदर, असेट्स बढ़ेगी जब भी ये खर्चा करेंगे। तो इस खर्चे को हम पीएनएल अकाउंट में शो नहीं करते क्योंकि हमारे असेट्स और लायबिलिटीज के पार्ट होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, कैनल्स, क्या, हाँ अकाउंट्स का ही रूल चलता है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, कैनाल्स एटसेट्रा, जो भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का काम करेगी वो सारा का सारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और दूसरा पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, तो ये दोनों हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, बजट का स्ट्रक्चर। आप मान के चले एग्जाम में 2 क्वेश्चन स्ट्रक्चर से आएंगे आपके। चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स का है अपने। चलो अगला जो टॉपिक है, हम कुछ अदर टाइप के टैक्सेज और पढ़ रहे हैं, है ना। अगला टॉपिक क्या है, अदर टाइप ऑफ टैक्सेज। ये जो 2 टैक्स अपने पढ़े, इसके अलावा भी कुछ टैक्स के और टाइप होते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला टैक्स है प्रोग्रेसिव टैक्स। कौन सा टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेस करता है ये, इसलिए इसका नाम प्रोग्रेसिव है। कैसे प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी। इसका मतलब जब इनकम बढ़ती है तो टैक्स भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे इंडिया में यही सिस्टम है, 5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं देना है, 5 लाख से इनकम जैसे ज्यादा होगी आपको टैक्स देना है, फिर 10 लाख से और ज्यादा इनकम और ज्यादा देना है, 10 से ज्यादा हुई तो और ज्यादा देना है। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स की रेट भी बढ़ती जाएगी। यानी कि ये क्या करता है, जो रिच क्लास है उस पर ज्यादा बर्डन इंपोज करता है और जो पुअर क्लास है उस पर कम बर्डन डालता है। तो ऐसा टैक्स जहां पर इनकम के साथ साथ टैक्स की रेट भी इंक्रीज हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। भी प्रोग्रेस हो रही ना, सीधा सा इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। और इंडिया में जो टैक्स इंपोज हो रहा है वो प्रोग्रेसिव नेचर का ही होता है। ठीक है ना। अभी ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, पहले था अब हटा दिया है। इक्वलिटी हो गई ना, सब जगह समानता है, ये मतलब सरकार के लिए है। सब जगह समानताएं लाने की कोशिश कर रहे हैं। बजट में अपने पड़ा इक्वलिटी मेंटेन करनी है,
वो अलग चीज है। वो ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर फीमेल लिटरेसी और ये सब कुछ बहुत डाउन है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कब है सर? सर तो कहाँ पहुंच गई सर? इंडिया में मेल के कंपैरिजन में फीमेल लिटरेसी कम ही है। सर ये क्या चाहते हैं कि भाई सारी फीमेल पढ़ने वाले छोरे क्यों दे जाते हैं? मना किसने किया छोरों के लिए? सर छोरियों के लिए किसने बोला है? घर वाले। कौन कर रहे हैं सर? अब सेकंड टैक्स होता है रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव समझ में आ गया? यस सर। इनकम के साथ साथ पड़ेगा। मतलब तुम्हें कमाना ही कमाना है। हाँ, अगर सरकार को, तो इसलिए वहां का हर आदमी कमाता है। इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जेल में जाएंगे नहीं तो, ऐसा रूल है वहां पर। रेडीमेडली खाओ। हाँ, इसलिए वहां पर पॉवर्टी नील के बराबर यूएसए के अंदर। हाँ सर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। रिग्रेसिव टैक्स हमारा ऐसा टैक्स है, जब इनकम बढ़ती है तो टैक्स आपको कम देना पड़ेगा, तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इंडिया में करेंगे तो बच्चे कमा लेते हैं सर, फिर तो अम्मा पहले लोगों की हालत खराब है। टैक्स उतना ही देना है ना। पर जो टैक्स लगता है, कैजुअल इनकम जो आती है, तो वो एक फ्लैट रेट से लगता है, जो चाहे वो अमीर आदमी ने जीती हो चाहे गरीब आदमी ने जीती हो, वो 30% स्लैब माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा टैक्स जो सभी पर एक कॉमन रेट से अप्लाई होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। समझ में आ गया प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? जो सभी पर एक ही रेट से अप्लाई हो, वो हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। दूसरा टैक्स ऑन लॉटरी, ये हमारे प्रोपोर्शनल टैक्सेस होते हैं। नोट कर लिए होंगे? नहीं सर, नोट नहीं किए? कर लिए सर। सर इसको लिखना तो नहीं है। जिस तरह से हमने अदर टाइप ऑफ टैक्सेस पढ़े हैं, उसी तरह से कुछ अदर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो अगला टॉपिक लिखेंगे अदर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। अदर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट टाइप इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, डेवलपमेंट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, गवर्नमेंट कोई भी स्पेंडिंग करती है तो वो क्या है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इन एक्सपेंडिचर से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसलिए इन्हें डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहेंगे अपन, है ना। एक्सपेंडिचर किस किस के ऊपर? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सारे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन डेवलपमेंटल। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे इकोनॉमी में डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, जैसे कि पुलिस पर खर्च, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जरूरी भी है ये। कोर्ट पे जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट पुलिस, डिफेंस, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एटसेट्रा, इसे हम कहेंगे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। पुलिस, डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट करती है वो सारे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर।